السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ خطبہ مسنونہ کے بعد جو آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اس کے متعلق کچھ عرض کرنے سے پہلے بہتر و افضل سمجھتا ہوں اس بھیک دینے والے آقا، ہم غریبوں کے آقا، ہم فقیروں کے داتا، ہم یتیموں کے سہارا، شاہوں کے شہنشاہ، رسولوں کے بادشاہ، مکی کے سرکار، مدینے کے تاجدار، نائب پروردگار احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ عالیہ میں اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے بآواز بلند درود پاک پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نبی اور آل نبی کے نام اور ایک مرتبہ بلند آواز سے درود پاک پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، ہو اگر اسی میں خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہان چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں۔ خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ حضرات محترم، آپ سے درود پاک پڑھنے کے لیے کہا گیا ہے۔ آپ سوچتے ہوں گے بولے ہیں مولانا وہی پڑھ لیں گے، آپ جب درود پاک پڑھ رہے ہیں تو آواز ہی نہیں آ رہی ہے۔ آقا بیٹھے مدینے میں ہے، ہمارے دل کی دھڑکن بھی سن رہے ہیں، ہمارے درودوں کو بھی سنیں گے، انشاءاللہ ضرور سنتے ہیں، لیکن آپ دل و جان سے اگر درود پاک پڑھیں گے تو خود اپنے کانوں سے ہمارے آقا ہمارے درود پاک کو سنتے ہیں۔ لیکن آپ دل و جان سے نہیں پڑھتے ہیں، بس فارمالٹی کے طور پر آپ پڑھیں گے تو بھی آپ کے درود پاک سنایا جائے گا، لیکن فرشتے لے کر سنائیں گے، فرشتے لے کر جائیں گے، رسول پاک کی بارگاہ میں پیش کریں گے۔ اگر وہی آپ جمعہ کے روز درود پاک پڑھتے ہیں تو اس درود پاک کو خود ہمارے آقا اپنے کانوں سے سن لیتے ہیں۔ اب آپ کی مرضی ہے، آپ بلند آواز سے پڑھیں گے یا ہلکا پڑھیں گے۔ اور ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم۔ یہ ہوئی نا بات۔ اب اسی انداز سے آپ درود پاک پڑھیں گے تو اس درود پاک کیا ہے، فضاؤں کو خلاؤں کو چیرتی ہوئی جا کے سبز گنبد کے مینار سے ٹھکراتی ہے تو فرشتے عرض کریں گے، یا رسول اللہ، اننت پور کے مسجد بہت میں بیٹھ کر لوگ درود پاک پڑھ رہے ہیں، یا رسول اللہ آپ کو یاد کر رہے ہیں۔ یہ ہوتی ہے حضرات محترم، جب بھی آپ کو موقع ملے تو درود پاک پڑھنے کی کوشش کیا کریں۔ چلیے حضرات محترم، خطبہ مسنونہ کے دوران جو آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا وہ آیت مقدسہ یہ ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ اللہ پاک فرماتا ہے بے شک، خبردار، بے شک اللہ کے ولیوں کو نہ کسی چیز کا خوف ہے نہ کسی چیز کا غم ہے۔ صاف صاف اعلان ہو گیا، اللہ رب العزت جب بول دیا ہے میرے ولیوں کو کسی چیز کا غم نہیں، کسی چیز کا خوف نہیں، تو یہ فکس ہے۔ جب اللہ تعالیٰ فرما دیا اللہ کے ولیوں کا نہ کوئی کچھ بگاڑ سکتا ہے، نہ کوئی ان کو کچھ تکلیف دے سکتا ہے، نہ ان کی شان کم ہوتی ہے، نہ ان کا مرتبہ کم ہوتا ہے، نہ ان کی عظمت کم ہوتی ہے، کیونکہ ان کا ذمہ لینے والا رب ذوالجلال ہے۔ رب فرما رہا ہے خبردار، بے شک میرے ولیوں کو کسی چیز کا غم نہیں، کسی چیز کا خوف نہیں۔ جب غم نہ ہو، خوف نہ ہو تو اللہ کے ولیوں کو کس بات کی ٹینشن ہے؟ کچھ بھی نہیں حضرات محترم۔ یہاں تک اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے اگر میرے ولی سے کوئی دشمنی کرے، بات آپ سن لیں، اگر کوئی میرے ولی سے دشمنی کرے تو میرے طرف سے اعلان جنگ ہے۔ حضرات، جب کوئی اپنے دوستوں سے، اپنے رشتہ داروں سے کوئی دشمنی رکھے تو کیا ہے نا، طاقت والا سامنے آ جاتا ہے اور اعلان کر دیتا ہے اب کوئی ہے میرے دوست کو کوئی ٹچ کرے
अब कोई है मेरे रिश्तेदार को कोई मुकाबला कर सके, पहले मुझसे झेलो। हजरात, एक आम इंसान जब अपने दोस्त को कोई छेड़ दे, जब अपने कोई रिश्तेदार को तकलीफ दे तो सामने खड़ा हो जाता है, ताकतवर सामने खड़ा हो जाता है, ये ऐलान करने लगता है किसी में दम है तो आके मेरे दोस्त को टच करना, मेरे रिश्तेदार से मुकाबला कर लेना। हजरात, ये इंसान की बात है। तो इंसान जब अपने दोस्त को तकलीफ आ जाता है तो सामने खड़ा हो जाता है, और रब्बे जुल जलाल का दोस्त अल्लाह के वली है, जब उन्हें कोई तकलीफ देने लगे तो अल्लाह रब्बुल इज्जत सामने खड़ा हो जाता है। ये मामूली बात नहीं है। अल्लाह के वलियों को मामूली ना समझें। अल्लाह के वली अल्लाह के दोस्त हैं, अल्लाह के साथी हैं, लेकिन हम लोग क्या है ना, समझते नहीं। जब भी कभी हम अल्लाह के वलियों के बारगाह में जाएं तो अदबन खड़े होकर आप दरूदो सलाम पढ़ा करें, आपको जो सूरतें आते हैं उनको आप वहां पढ़ा करें, और उस अल्लाह के वली की बारगाह में आप क्या है ना, तोहफतन पेश किया करें, सवाब पहुंचाया करें। जब भी आप पहुंचाएंगे ना, अब बाबा फखरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह पिनकोंडा में आराम फरमा है, उनसे हमारा कोई ताल्लुक है क्या? वो हमारे रिश्तेदार है क्या? कोई है वो हमारे दोस्त हैं? नहीं, वो अल्लाह के दोस्त हैं, अल्लाह के वली हैं। अगर हम अल्लाह के वली से दोस्ती करेंगे, अगर हम अल्लाह के वली से रिश्ता जोड़ लेंगे तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में सिफारिश करेंगे, मौला फलां तेरा बंदा आया था और मेरी सिफारिश मांग रहा है, मैं दुआ करता हूँ मौला तो इसके तमाम परेशानियों को दूर फरमा दे। जैसे ही वो कहते हैं तो अल्लाह रब्बुल इज्जत फौरन हमारे परेशानियों को दूर फरमा देता है। ये अल्लाह के वलियों की शान है। इंशाअल्लाह इसके मुतालिक आपके सामने अर्ज करूंगा, और एक मरतबा बुलंद आवाज़ से दुरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना शफीना हबीबना नबीना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना मुहम्मद मुबारक वसल्लम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात मोहतरम, एक छोटा दरूद पाक के मुतालिक, दरूद पाक पढ़ने से क्या फायदे हैं उसके मुतालिक बस मुख्तसर से एक छोटा वाक़या आपके सामने रख देता हूँ, ताकि आपको मालूम हो जाए हमारे बुजुर्गान दीन जो तरीका इख्तियार करे हैं, अगर हम उसको अपना लेंगे तो हम दुनिया में भी कामयाब हैं और आखिरत में भी कामयाब हैं। चलिए हजरत मोहतरम, एक शहर में एक सौदागर रहा करता था। तो क्या है ना, अपने जिंदगी में बहुत सारा मालो दौलत इकट्ठा किया, बहुत सारा जायदाद कमाया। बस उसके 2 बेटे थे। जब वो उसका आखिरी वक्त आ गया, जाते वक्त वो कह दिया, बेटा ये सब क्या है ना, आपस में दोनों भाई आप आपस में बांट लो, तकसीम कर लो। जैसे ही बाप का इंतकाल हो जाता है, दोनों भाइयों क्या है ना, तमाम जायदाद को, तमाम मालो दौलत को बांटना शुरू कर दिए हैं। उस सौदागर ना अपने जिंदगी में एक बहुत बेहतरीन काम कर गया था। काम, मालो दौलत तो इकट्ठा किया है, जायदाद तो जमा किया है, लेकिन उसके साथ ही साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 3 मुए मुबारका कर गया है। 3 मुए मुबारका, बस भाई दोनों आपस में क्या है, पूरा तकसीम कर लिए हैं। अब बारी आती है 3 मुए मुबारका की। 3 मुए मुबारका की बारी आती है तो बड़ा भाई कहने लगा, भाई सब क्या है ना, आधा आधा बराबर तकसीम कर लिए हैं, अब मुए मुबारका को भी तकसीम कर लेंगे। बड़ा भाई ने कहा, एक मुए मुबारका मैं ले लेता हूँ, एक तू ले ले। दोनों ले लिए हैं, बस बची है एक मुए मुबारका। एक तो एक बड़ा ले लिया, दूसरा और एक ले लिया, अब एक है, क्या करें? छोटा भाई कहने लगा, भाई इस मुए मुबारका को मुझे दे दो। छोटा भाई कहने लगा, भाई इस मुए मुबारका को मुझे दे दो। नहीं नहीं, मैं नहीं देने देता, मैं ऐसा नहीं करने देता, बस उसको भी 2 तकसीम कर ले, अल्लाह हो, उसको भी 2 टुकड़े करना चाहिए, आधा तो ले ले आधा मैं ले ले। लेकिन छोटा भाई मानने के लिए तैयार नहीं, उसका दिल मचलने लगा। वो तो आशिक रसूल था। जब आशिक क्या है ना, अपने नबी के शान में कुछ भी थोड़ा सा भी अगर गुस्ताखी करता है, बेअदबी करता है, तो बर्दाश्त नहीं कर सकता। छोटा भाई का दिल मचलने लगा और वो सोचने लगा, अरे कुल कायनात बनी नबी के सदके, कायनात को जिंदगी मिली नबी के सदके, गुलों को फूल मिले नबी के सदके, सूरज को रोशनी मिली नबी के सदके, चांद को चांदनी मिली नबी के सदके, दिन को रात मिली नबी के सदके, सिद्दीक अकबर को सिदाकत मिला नबी के सदके, फारूक आजम को अदालत मिली नबी के सदके, उस्मान गनी को शराफत मिली नबी के सदके, मौला अली को शजारत मिली नबी के सदके, इमाम अबू हनीफा को फुकहात मिली नबी के सदके, गौसे आजम को विलायत मिली नबी के सदके, आज हमें खुद रहमान मिला नबी के सदके। ऐसे नबी का मुंह मुबारक का 2 टुकड़े होना, भाई मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। जा मेरा सारा मालो दौलत को ही ले ले, 3 मुंह मुबारक मुझे दे, सारा मालो दौलत को ही ले ले, बस 3 मुए मुबारका मुझे दे दो। बड़ा भाई कहने लगा, अरे ये तो कितना बेवकूफ है, 3 मुए मुबारका के बाद, 3 मुए मुबारका के बदौलत सारी जायदाद कुर्बान कर रहा है।
बड़ा भाई कहने लगा, हंसने लगा और तीनों मुँह मुबारक दे दिया और कहना सारा मालो दौलत ले लिया। बस कुछ ही दिन गुजरे थे, बस कुछ ही दिन गुजरना था। छोटा भाई का रोजाना मामूल क्या था मालूम है आपको? वो छोटा भाई जब मुँह मुबारक तीनों ले लिया है, अपना घर छोटा सा घर था, घर में गया एक ऊंचा मकाम पे, जैसे आज हम मुँह मुबारक को यहाँ सजाए हुए हैं, ऊंचे मकाम पे रख देता है और क्या है ना रोजाना वहां कुछ फूल डालता है और नीचे बैठकर अपने सर को झुकाकर दरूद पाक पढ़ना शुरू कर देता था। कुछ ही दिन गुजरा था, छोटा भाई क्या है ना बहुत बड़ा मालदार हो गया, लेकिन बड़ा भाई क्या है ना नबी के शान में कुछ अदब भी बेअदब भी किया था, नबी के अदब के शान में कुछ बेअदब भी बकने लगा। इसलिए क्या है ना अल्लाह रब्बुल इज्जत उसका सारा मालो दौलत घर कर दिया, उसका सारा मालो दौलत छीन गया और छोटा भाई मालदार भी हो गया। जैसे ही छोटा भाई रोजाना ये मामूल था, नमाजों के बाद बैठकर दरूद पाक पढ़ा करता था। कुछ दिनों के बाद छोटे भाई का भी इंतकाल हो जाता है, गांव के बाहर उनको दफना दिया जाता है। जैसे ही हजरत मोहतरम दफनाने के बाद 2-3 दिन के बाद क्या है ना एक उस गांव के एक आलिम दीन के ख्वाब में मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ फरमा होते। उस आलिम दीन के ख्वाब में मेरे नबी तशरीफ ले आते हैं और ये ऐलान करते हैं, जाओ जाकर कह दो मेरा एक आशिक रसूल गांव के बाहर आराम फरमा है, जो भी तकलीफ में है, जो भी परेशानी में है, जाओ मेरे उस आशिक के बारगाह में चले जाना और वहां वसीला बनाकर दुआ मांग लेना। अल्लाह रब्बुल इज्जत उस आशिक के सदके तुफैल में तुम्हारे तमाम परेशानियों को दूर फरमा देता है। हजरात देखिए दरूद पाक पढ़ने की फजीलत और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मुँह मुबारक को अदब से अपने पास रखना, ज़ियारत करना, उसका देखभाल करना। हज़रात मोहतरम हम समझते हैं क्या मामूली है, हम सालाना एक मरतबा मुँह मुबारक की ज़ियारत करते हैं, हम समझते हैं क्या है चलो साल में एक बार देख लेते हैं, हो गया। हज़रात एक बार देखना हमारे लिए साल तक काफी है। वही याद में अगर हम साल भर याद करते हुए दरूद पाक पढ़ेंगे तो कल क़यामत के दिन आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम क्या है ना उस मुँह मुबारक के सदके दरूद पाक पढ़ने के सदके हमें क्या है ना सिफारिश करेंगे और हमारी शफाअत फरमाते हैं। हजरात पढ़ेंगे दरूद पाक, अगर आप भी आप ना पढ़ेंगे तो आपकी मर्जी है। पढ़िए दरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना शफीअना हबीबना नबीना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना मुहम्मद मुबारक वसल्लम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरात मोहतरम एक वक्त ऐसा था हिंदुस्तान में न अल्लाह का जिक्र करने वाला कोई था, न रसूल का चर्चा करने वाला कोई था, न दीन को समझने वाला कोई था, ना अहले बैत को मानने वाला कोई था, कोई नहीं है। उस वक्त क्या है अल्लाह रब्बुल इज्जत एक ऐसे मकबूल बंदे को हिंदुस्तान के लिए रवाना फरमा देता है। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इशारे से एक अजीम शख्सियत हिंदुस्तान में तशरीफ ले आते हैं। हजरत मोहतरम वो जब हिंदुस्तान पर आए तो क्या है ना कुफ्र मिटने लगा, रसूल की अजमत के चर्चे होने लगे, अहले बैत के आशिक बनने लगे, औलिया के चाहने वाले बनने लगे, औलिया के मानने वाले बनने लगे। हजरत मोहतरम यहाँ तक आज हम मुसलमान बने हैं, उसी का सदका है। आज हम कलमा पढ़ रहे हैं तो उसी का सदका है। आज हम दरूद पढ़ रहे हैं तो उसी का सदका है। आज हमें मस्जिदें यहाँ बना रहे हैं तो उसी का सदका है। आज क्या है ना अपने वालिदैन की खिदमत कर रहे हैं तो उसी का सदका है। आज हम रसूल को चाह रहे हैं उसी का सदका है। आज हम औलिया को मान रहे हैं उसी का सदका है। उसी का नाम हिंद के बादशाह हम सब के राजा ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि अलैह। हजरात अगर ख्वाजा हिंद में ना आते तो शायद हम मुसलमान ना होते, हमारे दादा परदादा आबा अजदाद जितने भी हैं शायद मुसलमान ना होते। ये सब ख्वाजा का सदका है। अब ही नहीं कयामत तक जितने भी लोग आएंगे कलमा पढ़ने वाले हमारे नस्लों से जन्म लेंगे, सब ख्वाजा के ही सदका है, सब ख्वाजा का सदका है। अगर मेरे ख्वाजा हिंद में ना आते आज हम सुन्नी ही ना होते, आज हम मुसलमान नहीं ना सुन्नी है, कुछ भी नहीं होते। आज हम सुन्नी बने हैं तो भी ख्वाजा का सदका है। आज हम क्या है ना दरूद पाक पढ़ रहे हैं, आज हम जलसे मना रहे हैं, जुलूस निकाल रहे हैं, सब मेरे ख्वाजा के ही सदका है। हज़रत मोहतरम ये महीना ख्वाजा गरीब नवाज का चल रहा है, कल ही उनकी छठी शरीफ हुई है। इंशाअल्लाह उनके बारे में आपके सामने कुछ बातें रखता हूँ और एक मरतबा बुलंद आवाज़ से दुरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना शफीअना हबीबना नबीना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत मोहतरम ख्वाजा गरीब नवाज जब हिंदुस्तान में तशरीफ ले आए हैं उनकी उम्र क्या है? 60 पर 9 साल रिवायतों में आता है। बुजुर्गान दीन लिखते हैं 60 पर 9 साल में हिंदुस्तान आए हैं।
हजरत कोई मामूली बात है। आज क्या है ना, कोई भी शख्स जब गवर्नमेंट जॉब करते हैं तो 60 साल के बाद रिटायरमेंट, उसके बाद क्या कहते हैं, नहीं मैं पूरी जिंदगी मेहनत किया हूँ, अब क्या है ना मुझे आराम का वक्त है, मैं इबादत में गुजार देता हूँ, जिक्र व अस्कार में गुजार देता हूँ, क्या है ना मैं कोई काम काज नहीं करता, जिंदगी पूरा मैं काम कर करके थक गया हूँ। ये कॉमन है, क्या है ना इंसानी ताकत इतनी ही है, इसीलिए गवर्नमेंट ने भी क्या है ना, हुकूमत ने भी फिक्स कर दिया 60 साल तक आप मेहनत करो, उसके बाद क्या है ना बाकी जिंदगी आराम से गुजारो। लेकिन ख्वाजा गरीब नवाज की उम्र कितनी थी? 60 पर 9 साल। 60 पर 9 साल में उनको क्या है ना हुक्म मिलता है, जाओ हिंद में जाके इस कुफरिस्तान को इस्लामिस्तान बना दो, जाओ हिंद के लिए रवाना हो जाओ, वहां जितने भी काफिर हैं उनमें क्या है ना लोगों में दावत दो, दीन की दावत दो, उनको मुसलमान बना दो। तो ख्वाजा गरीब नवाज 60 पर 9 साल में हिंदुस्तान आना, और यहाँ क्या है ना कट्टर हिंदू, कलमा पढ़ने वाला कोई नहीं है, ऐसे इलाके में आकर ख्वाजा गरीब नवाज जब दीन की तबलीग करे हैं तो कितना उनको हिम्मत होना चाहिए, कितना भरोसा होना चाहिए। कोई मामूली बात है 60 पर 9 साल में हिंदुस्तान आना, वो भी सारे काफिरों के इलाके में आना, जब क्या है ना एक इंसान इतना बड़ा काम करना कोई मामूली बात नहीं। लेकिन ख्वाजा गरीब नवाज को अल्लाह रब्बुल इज्जत पे इतना भरोसा था, इतना भरोसा, हुक्म हुआ है जाना है, दीन का काम करना है, दीन को फैलाना है, हिंदू में आ गए हैं। हजरत मोहतरम ये तो ख्वाजा गरीब नवाज जब आए हैं उनका बचपने का आलम समाज फरमाइए, उनका बचपने का आलम क्या है ना, विरासत में उनको एक बागीचा मिलता है। ख्वाजा गरीब नवाज को विरासत में एक बागीचा मिलता है, एक अंगूर का बागीचा है। रोजाना ख्वाजा गरीब नवाज का ये मामूल था, बगीचे में खुद जाया करते, पूरा बगीचा साफ किया करते, दरख्तों से अंगूर को काटा करते, लाके मार्केट में बेचा करते, जो भी माल जो भी पैसे मिलते हैं घर ले आकर उनकी अम्मी को दिया करते थे। रोजाना यही मामूल था। लेकिन ख्वाजा गरीब नवाज का रोजाना एक मामूल ये भी था, जब वो बगीचा साफ किया करते थे तो कुरान की तिलावत किया करते थे। जब वो बगीचा साफ करते हैं तो कुरान की तिलावत करते हैं, जब वो क्या है ना दरख्तों से अंगूर को काटते हैं तो भी कुरान की तिलावत किया करते हैं। रोजाना उनका यही मामूल है। लेकिन एक दिन क्या है ना, जब ख्वाजा गरीब नवाज अपने बागीचे में गए हैं तो क्या देखते हैं, सारा बागीचा साफ नजर आ रहा है, सारा बागीचा क्लीन है, और क्या है दरख्त से अंगूर कटे हैं, एक जगह इकट्ठा भी हो गए हैं। ख्वाजा गरीब नवाज को समझ में नहीं आया, अरे ये क्या माजरा है, मैं आने से पहले कोई आके मेरा बगीचा साफ कर दिया है और दरख्तों से अंगूर को भी कटा के एक जगह रख दिया है, ये कौन हो सकते हैं। गए ख्वाजा गरीब नवाज, जाकर मार्केट में बेच दिए, आ गए। 2 दिन ऐसा, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन गुजर गए तो ख्वाजा गरीब नवाज के दिल में ख्याल आया, अरे ये कोई मेरा मदद कर रहा है, आज मैं उनसे मुलाकात करना चाहता हूँ। तो ख्वाजा गरीब नवाज क्या है ना चुपके से पहले ही चले जाते हैं और बागीचे में जाकर देखने लगते हैं, क्या है ना खुद ब खुद ऑटोमेटिक क्या है ना झाड़ू लग रहा है, ऑटोमेटिक साफ, पूरा साफ हो रहा है। थोड़ी देर के बाद ऑटोमेटिक से क्या है ना दरख्त से अंगूर कट रहे हैं, जाके एक बाजू में रुक जा रहे हैं, एक बाजू में जम हो रहे हैं। लेकिन ख्वाजा गरीब नवाज को समझ में नहीं आ रहा है, अरे ये क्या हो रहा है, खुद ब खुद साफ हो रहा है, खुद ब खुद झाड़ू लग रहा है, खुद ब खुद दरख्त में से अंगूर कट रहे हैं, एक जगह इकट्ठा हो रहे हैं। ख्वाजा गरीब नवाज सोचने लगे, अरे कोई एक ताकत है जो मेरे आंखों से ओझल है, मेरे आंखों से दूर है, मेरे आंखों की नजरों से दूर है, आज मैं देखना चाहता हूं। तो ख्वाजा गरीब नवाज बीच बगीचे में खड़े हो जाते, बीच बगीचे में खड़े हो गए और अर्ज और इरशाद फरमाने लगे, वो कौन सी ताकत है जो मेरे नजरों से छुपी है, मैं उनको दावत देता हूं वो जाहिर हो जाए। तो कुछ देर के बाद क्या है ना दूर से 3 जिन क्या है ना चलते हुए ख्वाजा गरीब नवाज के सामने आ गए और अदबन हाथ बांध कर मेरे ख्वाजा के नजरों के सामने खड़े हो गए। तो मेरे ख्वाजा गरीब नवाज अलैहि रहमत व रिजवान इरशाद फरमाने लगे, ऐ तुम कौन हो? तो वो तीनों शख्स जवाब देने लगे, ऐ ख्वाजा हम तो क्या है ना जिन्नात है, हमारी जिन मखलूक है। तो ख्वाजा गरीब नवाज पूछने लगे, अरे क्या माजरा है, मेरे बगीचे में आकर तुम क्यों साफ कर रहे हो, मेरे बगीचे में आकर तुम क्यों खिदमत दे रहे हो? तो उन तीनों जिन अर्ज करने लगे, ऐ ख्वाजा हम आपके गुलाम बन गए, ऐ ख्वाजा हम आपके गुलाम बन गए हैं। तो ख्वाजा गरीब नवाज को माजरा समझ में नहीं आया, अरे मेरे क्या करामात आप देखे हैं, मेरे क्या करामात आप देखे हैं, मेरे गुलाम हो गए हैं। तो जिन अर्ज करने लगे, ख्वाजा गरीब नवाज जब आप बगीचे में
आकर साफ किया करते थे। तो कुरान इतनी प्यारी अंदाज में पढ़ा करते थे, कुरान को इतनी प्यारी अंदाज में पढ़ा करते थे। ऐ ख्वाजा ये गरीब नवाज, हम दूर दराज रहने वाले आपकी कुरान की आवाज को सुनकर हम आकर यहाँ आ गए हैं और आपके गुलाम बन गए हैं। ऐ ख्वाजा, हमें क्या है ना आपके गुलामी में शामिल कर लो। देखिए हजरत मोहतरम, जब ख्वाजा ये गरीब नवाज अपने बगीचे में काम करते करते कुरान की तिलावत करते हैं, उस कुरान की तिलावत करने के बदौलत 3 दिन ख्वाजा के गुलाम हो गए हैं। हजरत मोहतरम, वो जिन्नात हैं, वो जिन्नात हैं, ख्वाजा के गुलाम हो गए हैं। हजरत मोहतरम, वही ख्वाजा ये गरीब नवाज जब आम लोगों के सामने कुरान पढ़ते तो कितने लोग इस्लाम में आ जाते थे। हजरत मोहतरम, आप अंदाजा लगा दीजिए, जिन है जिनको मनाना मामूली बात नहीं। आज इंसान मामूली से नहीं मानता, आज इंसान इतना आहिस्ता कोई बात नहीं मानता, लेकिन जिन मान रहा है तो ख्वाजा गरीब नवाज कितनी प्यारे अंदाज से कुरान पढ़ते होंगे। अगर वही ख्वाजा गरीब नवाज आम लोगों के सामने कुरान पढ़ते हैं तो सारे लोग इस्लाम लेकर ही ले आते हैं। हजरत मोहतरम, ये ख्वाजा गरीब नवाज की शान है हजरत। बल्कि इतना ही नहीं, ये तो बचपने का आलम है। जैसे जैसे ख्वाजा गरीब नवाज जब हिंद में आए, बहुत सारे वाक़यात पेश आए हैं। और एक मर्तबा बुलंद आवाज़ से दुरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना शफीअना हबीबना नबीना मौलाना मोहम्मद व अला आलि सय्यदिना मोहम्मद मुबारक वसल्लम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत, ख्वाजा गरीब नवाज जब कुरान पढ़ते हैं तो जिन गुलाम हो गए हैं। अगर वही ख्वाजा गरीब नवाज काफिर के सामने पड़े होंगे तो मुसलमान तो हो ही गया होगा। ख्वाजा की तो ये शान है। चलिए हजरत मोहतरम, ख्वाजा गरीब नवाज अलैहि रहमत व रिदवान का दरबार खड़ा हुआ है, दरबार लगा हुआ है, सारे मुरीदीन आकर बैठ गए हैं। एक शख्स आया, जोर जोर से आया, ख्वाजा गरीब नवाज बैठे हैं और उनके मुरीदीन सारे बैठे हैं, लेकिन जोर जोर से एक शख्स आता है और ख्वाजा गरीब नवाज के सामने से जाता है और उनके मुरीद के गिरेबान को पकड़ लेता है। यानी कि ज्ञानी ख्वाजा गरीब नवाज के मुरीद के कॉलर को पकड़ लेता है और उठ खड़े हो जाते हैं। उनका नाम शेख अली रहमतुल्लाहि अलैह हैं, वो भी अल्लाह के वली हैं। जब ख्वाजा गरीब नवाज के मुरीद हैं तो वो भी अल्लाह के वली ही हुए होंगे। ख्वाजा गरीब नवाज के मुरीद शेख अली रहमतुल्लाहि अलैह का गिरेबान पकड़ लेते हैं और जोर जोर से उस ताजिर यानी एक बिजनेसमैन, एक व्यापारी पूछने लगा, मेरे पैसे कब लौटाओगे, मेरे पैसे कब लौटाओगे? तो ख्वाजा गरीब नवाज करीब जाते हैं और पूछने लगते हैं, अरे ये क्या माजरा है, सारे लोगों के सामने ये क्या हंगामा कर रहे हो, क्या मामला है? अरे ख्वाजा गरीब नवाज, ये क्या है ना, मेरे पैसे लेकर बहुत दिन से मुझे तंग कर रहा है, मुझे सता रहा है, नहीं दे रहा है। तो ख्वाजा गरीब नवाज पूछते हैं, शेख अली क्या मामला है? हुजूर तंगदस्ती का आलम है, घर में रोजी रोटी का मामला है, तंगदस्ती में हो, हुजूर थोड़ा मोहलत दिला दीजिए, मैं पैसे वापस कर दूंगा, मैं पैसे लौटा दूंगा। तो ख्वाजा गरीब नवाज अर्ज करने लगे, अच्छा तू पैसे वापस कर देगा? तो हजरत शेख अली रहमतुल्लाहि अलैह कहने लगे, ख्वाजा गरीब नवाज, मैं पैसे जरूर वापस लौटा दूंगा। तो ख्वाजा गरीब नवाज फरमाने लगा, ताजिर थोड़ा मोहलत और दे दो, थोड़ा टाइम और दे दो, वो तुम्हारे पैसे लौटा देंगे, तुम्हारे पैसे जरूर वापस कर देंगे। तो उस ताजिर ने कहने लगा, नहीं मैं नहीं जाऊंगा, आज ही मुझे इसी वक्त मुझे पैसे चाहिए। आजकल सुनते हैं ना, बहुत सारे लोग ऐसा काम करते हैं, नहीं अभी छोना, मैं आके घर में बैठ जाता हूँ, मुझे पैसे अभी देना, नहीं तो तुम्हारे घर में ही मैं बैठ जाता हूँ। हजरत मोहतरम, ऐसा करना गलत है, ऐसा करना गलत है। चलिए हजरत मोहतरम, ख्वाजा गरीब नवाज थोड़ा मोहलत मांगते हैं, लेकिन वो ताजिर देने के लिए इनकार कर देता है। तो ख्वाजा गरीब नवाज दिलों का तो राज जानते हैं, हम क्या है ना, हम यहाँ बैठकर अगर ख्वाजा गरीब नवाज को याद करेंगे तो वो अजमेर में बैठकर हमारी फरियाद को जरूर सुन लेते हैं। वो तो अल्लाह के वली हैं। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज अपना चादर को निकालते हैं, जमीन पे बिछा देते हैं, अपने जेब से क्या है ना 3 दीनार वहां डाल देते हैं और उसके बाद क्या है ना चादर को मूछ देते हैं और थोड़ी देर के बाद चादर को खोलते हैं। बहुत सारे दीनार जमा हो गए, बहुत सारे दीनार जमा हो गए हैं। तो ताजिर को इशारा करते हैं, ताजिर जा, तेरा जितना पैसा है वो पैसों को ले ले और वापस यहाँ से चला जा। वो ताजिर जाता है, जितना उसको आना था वो भी ले लिया और लेते वक्त क्या है ना, देखिए इंसान की हिरिस है, इंसान की हिरिस, और वो भी व्यापारी है, बिजनेसमैन है, ताजिर है, हिरिस ज्यादा है। गया, लेने लगा, दीनार लेने लगा, उसका जितना बाकी का माल था ले लिया है
اور جیسے ہی خواجہ غریب نواز کی طرف دیکھ رہا تھا، میرا خواجہ وہاں نگاہ نہیں کر رہے ہیں، اپنے کام میں مشغول ہیں، اپنے ذکر میں مشغول تھے، لیکن وہ تاجر کیا ہے نا اور بھی زیادہ دینار لے لیا ہے اور وہاں سے رخصت ہو گیا ہے۔ جیسے ہی رخصت ہونا تھا، جن کا جو گریبان پکڑے تھے، جن کا نام شیخ علی رحمت اللہ علیہ ہے، ان کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، ان کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور وہ رونے لگے اور سارے لوگوں کی طرف دیکھنے لگے۔ سارے تو دیکھ رہے ہیں، شیخ علی رونے لگے، دل میں یہ سوچنے لگے، ارے وہ تو میرا بے عزت کر کے گیا ہے، اتنے سارے لوگوں کے سامنے میری بے عزت کیا ہے، میں ان کے سامنے اپنا چہرہ کیا دکھاؤں گا۔ یہ سوچتے سوچتے رونے لگے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے ہیں۔ خواجہ غریب نواز قریب جاتے ہیں، اپنے مرید کے قریب جاتے ہیں اور ان کو تسلی دیتے ہیں اور کہنے لگتے ہیں، اے شیخ علی ایک بات یاد رکھنا، اے شیخ علی یہ ایک بات یاد رکھنا، جب کوئی تمہیں تکلیف آ جائے، جب کوئی تمہیں پریشانی ستائے تو اللہ سے مانگنا اور اس کے رسول سے مانگنا۔ اگر تم عام آدمی سے مانگو گے تو ذلت کا آپ شکار ہونا پڑے گا۔ اے شیخ علی جو کچھ ہوا ہے اس کو بھول جاؤ، اللہ رب العزت پہ بھروسہ رکھو، اس کے رسول پہ بھروسہ رکھو، تمہیں ضرور نفع ہوگا، تمہیں ضرور فائدہ ہوگا۔ کچھ ہی ہفتے گزرے تھے حضرات محترم، کچھ ہی ہفتے گزرے ہیں تو کیا ہے نا وہ تاجر اپنے جسم کے اوپر ایک کمبل کو اوڑا ہے، ایک چادر کو اوڑا، خواجہ غریب نواز کے دربار میں حاضر ہو گیا۔ سارے لوگ جتنے جب تھے ابھی اتنے ہی لوگ ہیں۔ جب وہ آیا تھا زور زور سے آیا، جا کے گریبان کو پکڑا، آج آیا کمبل کو اوڑھ کر، چادر کو اوڑھ کر خواجہ پاک کے بارگاہ میں آیا، سر کو جھکایا ہوا کھڑا ہو گیا اور میرے خواجہ غریب نواز پوچھنے لگے، اے تاجر کیا معاملہ ہے، کس بنا پر آئے ہو؟ تو اس تاجر کہنے لگا، حضور غلطی ہو گئی ہے، حضور مجھ سے غلطی ہو گئی، معاف فرما دیجئے، میرے غلطی کو معاف فرما دیجئے، میرے گناہوں کو معاف فرما دیجئے۔ تو خواجہ غریب نواز پوچھنے لگے، اے تاجر یہ تو بتا کیا معاملہ ہوا ہے، کیا غلطی ہوئی ہے؟ حضرات محترم وہ تاجر کیا ہے نا اپنے جسم سے چادر کو نکلتا ہے، دونوں ہاتھ سن پڑے ہوئے ہیں، دونوں ہاتھ سن پڑے ہوئے ہیں، کچھ حرکت نہیں، ہاتھوں میں کچھ طاقت نہیں، کچھ مومنٹ نہیں ہے۔ تو اس تاجر کہنے لگا، حضور جب آپ نے کہا تھا وہ جتنے بھی چادر کے اوپر دینار تھے میرے حق میں جتنا ہے وہ اس کو لے لینا ہے، لیکن کیا ہے نا میں چوری سے زیادہ لے لیا ہوں، اسی بدولت اللہ رب العزت میرے ہاتھوں کو گرا دیا ہے۔ حضرات محترم ایک بات یاد رکھنا، اسلام کی سزا جب کوئی چوری کرتا ہے تو ہاتھ کاٹنے کا حکم ہے۔ وہ سوچنے لگا میں اللہ رب العزت کا جو بھی مال تھا آپ نے یہاں رکھ دیے تھے، میں میرے حق سے زیادہ لے لیا ہوں، گویا کہ میں نے چوری کیا، اسی لیے اللہ رب العزت میرے ہاتھوں کو سند کر دیا۔ تو حضرت خواجہ غریب نواز مسکرانے لگے اور فرمانے لگے، اے تاجر کیا تو یہ سوچتا ہے اللہ رب العزت کے یہاں تو مال زیادہ لینے سے تیرے ہاتھوں کو سند کر دیا، تیرے ہاتھوں میں کیا ہے نا طاقت کو لے لیا ہے؟ نہیں نہیں، یہ بات یاد رکھنا، تو ایک مظلوم کو ستایا ہے، یہ ایک مظلوم کو جب تو پیسے دیا تھا اس کی حیثیت نہیں ہے لیکن وہ دینے کے لیے مجبور ہے، لیکن وہ دینے کا ارادہ رکھتا تھا، لیکن پھر بھی تو گیا، اسے کیا ہے نا چار لوگوں کے سامنے گریبان کو تھام لیا، گریبان کو پکڑا، اپنے کالر کو اس کے ہاں پکڑ لیا ہے۔ جب اس کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے تو کیا ہے نا وہ عرش کو ہلانے لگے، کہیں عرش کو ہلا دیے ہیں۔ رب ذوالجلال کو وہ ادا پسند نہیں آئی، اسی لیے کیا ہے نا اللہ رب العزت تیرا جتنا بھی مال تھا سارا مال کو غرق کر دیا اور تیرے ہاتھوں میں بھی طاقت نہیں ہے۔ جا کر اس شیخ علی کے بارگاہ میں معافی طلب کر، اگر وہ معاف کر دے تو جا رب معاف کر دیا۔ وہ جاتا ہے شیخ علی کی بارگاہ میں، وہ کئی دور میں بیٹھے ہوئے تھے، ان کے قریب جاتا ہے اور ہاتھ جوڑتا ہے، یعنی ہاتھوں میں تو طاقت نہیں ہے، وہ کیا ہے نا دل ہی دل میں کہتا ہے اور وہ کہنے لگا، اے شیخ علی میں نے تو تجھے بہت ذلیل کیا ہے، اے شیخ علی میں نے تو تجھے بہت ذلیل کیا، میں نے تجھے بہت تنگ کیا، لیکن اللہ کے لیے مجھے معاف کر دو، اللہ کے لیے مجھے معاف کر دو۔ تو کیا ہے نا شیخ علی کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، وہ کیا ہے نا فوراً کہنے لگے،
मैं कौन होता हूँ माफ करने वाला। रब्बे जुल जलाल, तो जब तू सिद्क दिल से तौबा कर दिया, रब्बे जुल जलाल तेरी गलती को माफ फरमा दिया, जा यहाँ से चला जा। जैसे ही वो ख्वाजा की बारगाह में आता है और अर्ज करने लगता है, ऐ ख्वाजा ये पाक, शेख अली तो मेरी माफी कबूल कर लिए हैं, आप अल्लाह की बारगाह में दुआ कर दीजिए। जैसे ये ख्वाजा ये गरीब नवाज ने दुआ करना था, उस ताजिर के हाथों में ताकत आ जाते हैं और उसके ताजिर के हाथों में क्या है ना, कुव्वत आ जाती है। जैसे वो पहला था उसी तरीके से हाथ आ जाते हैं और वो कहने लगे, ऐ ख्वाजा ये गरीब नवाज, आपकी दुआ की बदौलत मेरे हाथ आ गए हैं। तो ख्वाजा गरीब नवाज फरमाने लगे, अच्छा जा तेरे हाथों आ गए हैं, अब तो यहाँ से चला जा, तो अब यहाँ से निकल जा। तो उस ताजिर कहने लगा, ऐ ख्वाजा आपका करामत मैंने देख लिया हो, अब मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा। ऐ ख्वाजा मैं आपके ही बारगाह में रहूंगा, आपके ही दरबार में रहूंगा, आप ही की खिदमत करूंगा, आपके बारगाह में झाड़ू देने लगूंगा, लेकिन मैं यहाँ से नहीं जाता। हज़रात मोहतरम देखिए, एक अल्लाह के वली से अगर दुश्मनी करेंगे, जिल्लत करने की कोशिश किया करेंगे, सारा माला दौलत गर्क, जिस्म में ताकत गर्क, ईमान भी चला जाने का अंदेशा, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत जिम्मा ले लिया, अगर कोई मेरे वलियों से दुश्मनी रखेगा, मेरे तरफ से ऐलान जंग है। दुनिया में कोई ताकतवर इंसान ऐसा नहीं है जो रब से टकरा सके, रब से जंग कर सके। हज़रात मोहतरम, अल्लाह के वलियों की बारगाह में आप जाओ या ना जाओ आपकी मर्जी है, लेकिन अगर आप इनकार करेंगे, ख्वाजा की बारगाह में जाने से कुछ नहीं मिलता, गौसे आजम कुछ नहीं देते, बाबा फखरुद्दीन कुछ नहीं देते, अगर आपका ये अकीदा रहेगा तो क्या है ना, आपका ईमान खसारे में, आपके अमाल खसारे में, आपके अमाल नुकसान में, आपके सारा ईमान क्या है ना जाने का अंदेशा है। हज़रात मोहतरम, मानो या ना मानो आपकी मर्जी है, लेकिन ठुकराना नहीं। अगर आप ठुकराएंगे तो जरूर आपके लिए नुकसान है। हज़रात मोहतरम, एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ेंगे, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना शफीअना हबीबना नबीना मौलाना मोहम्मद व अला आलि सय्यदिना मोहम्मद व बारिक व सल्लिम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात मोहतरम, एक मशहूर वाक़िया है, आप भी जानते हैं, सुने होंगे पहले, फिर भी क्या है ना, मैं पहली मर्तबा सुना रहा हूं, मेरे जुबान से भी एक बार सुन ले। जब हम रब से कुछ मांगते हैं तो हमें भी यकीन होना चाहिए ना, हमें भी भरोसा होना चाहिए। अरे हम दिलो जान से जब मानेंगे तो क्या है, अल्लाह रब्बुल इज्जत जरूर देने वाला है, लेकिन हम मांगते कहाँ है, हम पूछते ही नहीं, तो वो देता कब? जब पूछते ही नहीं वो देता कैसा? हम दिलो जान से नहीं पूछते, वो देता नहीं। जैसे जो जो मिलता है उसी का सबके मिल जाता है, उसी की बदौलत उसी के फजल से मिल जाता है। लेकिन क्या है ना, जब हमें कोई तकलीफ आ जाए, जब कोई परेशानी आ जाए, हमें भी ये भरोसा होना चाहिए, हमें भी ये यकीन होना चाहिए, रब हमारी परेशानी को दूर कर सकता है, रब हमारी तकलीफ को दूर कर सकता है। अब क्या है ना, जब भी परेशानी आए, आओ मस्जिद की तरफ, उधर इधर जाने की जरूरत नहीं, आ जाओ मस्जिद की तरफ, जाओ एक मस्जिद के कोने में खड़े हो जाओ, आपकी फरियाद रब की बारगाह में पेश करो, देखना अल्लाह रब्बुल इज्जत जरूर तुम्हारी फरियाद कबूल फरमा लेता। लेकिन हम लोग पूछते नहीं, हम लोग मांगते नहीं, फिर शिकवा करते हैं। अल्लाह के वली भी ऐसे हैं, हम जाते जरूर हैं, दिलो जान से मानते नहीं, फॉर्मालिटी, जाते हैं, चादर चढ़ाते हैं, फूल डालते हैं, आते हैं। हमें भी यकीन होना है, ऐ ख्वाजा आप देना ही है, ऐ ख्वाजा आपकी बारगाह में मैं फरियाद लेकर आया हूं, मेरी फलां परेशानी है, आप जरूर देना, आप मांग के देखो, वो जरूर दे के देखते हैं। हज़रात मोहतरम, ये मांगने की बात है, ये हमारा अकीदे की बात है, हमारी ईमान की बात है, और हमारी क्या है ना, ये कॉन्फिडेंस की बात है। लेकिन हमारे यहाँ खुद कॉन्फिडेंस नहीं, जब मांगेंगे कहाँ? जब आप मांगने में क्या है ना, आपका खुद भरोसा नहीं है, फिर यही क्वेश्चन आप भी करते हैं, अरे गए थे हम बहुत सारे मर्तबा, बहुत बार गए हैं, कुछ फायदा नहीं। ये आपका अंदाजा गलत, आपका अंदाजा गलत है। आप जाओ, मिलेगा जरूर, अगर आप मांगेंगे नहीं तो मिलेगा नहीं। हज़रात मोहतरम, हजरत औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह, नाम सुने हैं ना, मुगल किंग है हजरत औरंगजेब, आप किताबों में पढ़े होंगे, वो सिर्फ बादशाह नहीं, अल्लाह के वली हैं। औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह की ये शान है, वो अपनी सल्तनत के दौर में बहुत सारे मसाजिदें बनाए हैं, बहुत सारे मसाजिदें बनाए हैं। लेकिन हजरत औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह की एक खासियत थी, अपनी सल्तनत का 1 रुपया भी कभी वो इस्तेमाल नहीं करेंगे अपने जात के लिए, अपने पर्सनल के लिए,
कभी भी वो 1 रुपया भी सल्तनत का इस्तेमाल नहीं करें। जब भी अपने जात में कोई जरूरत पड़े तो क्या है टोपी बुना करते थे हजरत मोहतरम, टोपी बुना करते थे, और जो रकम मिलता था उससे क्या है ना अपना घर बसाया करते थे, अपनी परवरिश को चलाया करते थे। लेकिन सल्तनत का जो रकम है वो लोगों के लिए खर्च करे हैं, सल्तनत के लिए खर्च करे हैं, दीन के लिए खर्च करे हैं, लेकिन अपने जात के लिए 1 रुपया भी नहीं इस्तेमाल करे हैं। लेकिन आम लोगों को ये नहीं मालूम है वो एक अल्लाह के वली है। चलिए हजरत मोहतरम हजरत औरंगजेब रहमतुल्लाहि अलैह ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में हाजिरी देने के लिए जब ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में चले तो क्या है बाहर एक अंधा है, एक आंखों से अंधा खड़ा है। कोई 2 ख्वाजा के नाम से मैं अंधा हूं, कोई 2 ख्वाजा के नाम से मैं अंधा हूं, मुझे आंख नजर नहीं आते, आंख में रोशनाई नहीं दिखती, मुझे कोई रुपया दे दो, ख्वाजा के सदके मुझे कोई पैसे दे दो। हजरत औरंगजेब रहमतुल्लाहि अलैह सामने खड़े हैं, देख रहे हैं, ये जोर जोर से कह रहा है मैं अंधा हूं, मुझे कोई ख्वाजा के नाम पे कुछ पैसे दे दो। तो ख्वाजा गरीब नवाज तो ख्वाजा गरीब नवाज है, दिलों का राज तो वो तो जरूर जान लेते हैं। हजरत औरंगजेब रहमतुल्लाहि अलैह पूछने लगे, अच्छा तो ख्वाजा के बारगाह में खड़ा है और कह रहा है अंधा है और पैसे मांग रहा है, अच्छा ये तो बता कितने सालों से तेरे आंखों में रोशनी नहीं है? वो अंधा जवाब देने लगा, हुजूर 21 साल से मैं यहाँ रोज भीख मांग रहा हूँ, ख्वाजा के सदके भीख मांग रहा हूँ, लेकिन मुझे आंखों में रोशनी नहीं है, आंखों से मैं अंधा हूँ, 21 साल से यहाँ भीख मांग रहा हूँ। तो हजरत औरंगजेब रहमतुल्लाहि अलैह कहने लगे, अच्छा तू 21 साल से मांग रहा है लेकिन तेरे आंखों में रोशनी नहीं आई, अच्छा आज फैसला कर देते हैं तेरे आंखों में रोशनी आएगी या नहीं। तो सिपाहियों को खड़ा कर देते हैं और कहते हैं, ऐ अंधे, मैं हजरत की बारगाह में हाजिरी के लिए जा रहा हूं, वापस आए तक अगर तेरे आंखों में रोशनी आ गई तो तू बच गया, नहीं तो तेरा सर तन से जुदा हो जाएगा। बस बोल दिए। ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में हजरत औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह ज़ियारत के लिए गए, अंदर गए हैं, अब सलातो सलाम पेश करने लगे, कुछ क्या है ना सूरतें पढ़ने लगे। बाहर क्या है ना अंधे के दिल में टेंशन शुरू, अंधे के दिल में टेंशन शुरू, अरे ये क्या बहुत बड़ा मुसीबत आ गया है, 21 साल से कोई मुझे नहीं पूछ रहा है, 21 साल से मैं मांग रहा हूँ, मुझे आंख नहीं आ रहे हैं, अगर मुझे आंख नहीं आए तो गर्दन चली जाएगी, आंखों के बदौलत मेरे गर्दन ही जाने का अंदेशा है। वो क्या है ना गिड़गिड़ा के रोने लगा, गिड़गिड़ा के रोने लगा, 21 साल में कभी नहीं रोया, गिड़गिड़ा के रोने लगा। कुछ ही मिनट में इतना रोया रब के बारगाह में अर्ज करने लगा, मौला औरंगजेब अंदर गए हैं, अगर वो वापस आए तक मेरी आंखों में रोशनी नहीं आएगी तो मेरा गर्दन चले जाएगा, मेरा जिस्म से मेरी रूह चले जाएगी, मौला मुझे आंख अता कर दे, ख्वाजा के सदके आंख अता कर दे। जैसे ही वो दुआ करने लगा, जैसे ही औरंगजेब अलैहिर्रहमा बाहर आते हैं तो क्या देखते हैं, उस अंधे की आंखों में रोशनी आ जाती है, उस अंधे के आंखों में रोशनी आ जाती है। हजरात किसकी गलती थी? अंधे की गलती है, मांगने में कमी किया, अगर वो दिलो जान से पहले ही दिन मांग लेता तो शायद आंखों में रोशनी आ जाती। लेकिन हमारा भी यही हाल, हम क्या है ना मांगते सही नहीं है, दावा करते हैं, कमेंट्स बहुत करते हैं, अरे गए थे क्या भी काम बना नहीं, इतने साल हुआ, इतनी नमाजें पढ़ता हूँ, इतने रोजे रखता हूँ, इतने मर्तबा मैं जिक्र करता हूँ, लेकिन मेरे काम नहीं बने। अगर काम नहीं बनता तो ज्यादा जिक्र करो, काम नहीं बनता तो ज्यादा दुरूद पाक पढ़ा करो, अगर काम नहीं बनता तो अल्लाह के राह में ज्यादा दिया करो, अल्लाह रब्बुल इज्जत क्या है ना जरूर तुम्हारे काम को बनाता है। लेकिन कमी हमारे में क्या है ना, दावा हम बुजुर्गों से कहते हैं, दावा क्या है बुजुर्गों से करते हैं, कमी हमारे अंदर है। हजरत मोहतरम आप अगर दिलो जान से आप पूछेंगे ना, अब उतना दूर जाने की जरूरत नहीं, अगर कोई परेशानी हाल है मस्जिद के कोने में बैठ जाइए, कोई नहीं वक्त आप मांग लीजिए, जरूर अल्लाह ताला देगा। अगर कुछ फरियाद है बुजुर्गों की बारगाह में आप जाते हैं तो जरूर मांग लेना, इंशाअल्लाह जरूर मिल जाता है। हजरत मोहतरम इंशाअल्लाह फिर कभी मौका मिलेगा तो ख्वाजा गरीब नवाज के बारे में बहुत है बोलने के लिए।